Okay, good evening. So today you people first have to speak few things, few words related to policing system, mainly related to police reforms, some historical background and where we are missing, what more need to be done. Okay, yes, Manish. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Yes, sir. So today I'm talking about police reform. So question arises why India needs police reform. So there are three basic categories in which we can divide it. First is that according to Ministry of Home Affairs, it is seen that police are selectively efficient and unempathic towards especially the weaker section of society, and they have also observed a politicization and criminalization of that institution. Other is that a changing nature of society and the changing nature of security threat due to development of technology like cyber threat, cyber crime. Uh, uh, there are also that terrorist groups are also using technology for hiring, radicalization, etc. Other is that the basic framework of police system of India is was formed in 1861, but the society has changed very rapidly, but the change in system has not happened according to that pace. So these are the three reasons uh, for which Indian police system require amendments. So there are challenges that is faced by police system, that is overburden. For example, according to UN, a 2 to 2 number of per lakh person is police per lakh person is required, but in India it is How about much required? 150, 2 to 2 according Yes, to United Nations, yes. India but is but having. in 154 to 155 per lakh population, which burden the system. Other is lack of infrastructure, a less integration of technology, political involvement in promotion, transfer, etc. Other is there is also trust deficit between police and the population, which also hamper their working profile. So to counter this and to make amendment in police system, of which time since independent, a government have formed several schemes or committee like Gore Committee, National Police Commission, Prakash Singh Judgment, and others, in which the main motto was to make police more people-centric, empathic in nature, and also to make them more autonomous rather than being under the political pressure, and also to separate the law and order from that is investigation agencies. So to tackle this, the Supreme Court has given 7 steps in the to reform police system Seven in guidelines. yes, 7 guidelines in Prakash Singh case. And the 7 guidelines are: first is that a state must not pressurize the police system. A second, that DGP of a state police must be selected on merit based, and there must be a tenure of 2 years minimum. Other is the SHO or other operational officer should also must have minimum 2 year of tenure. Other is that there must be a system uh, who is who is liable to promotion or transfer, etc. Police And other is that Establishment Board. yes, sir. And other is that there also must be a system which Okay, okay. Okay, in yes. Now you have to stop. You said na ki in 1861 modern policing started, but who is known as originator in India in terms of modern era? Who is originator of police station? Ki Daroga will be head of police station and SP will supervise these inspectors. sir, I think it is Lord Cornwallis. Lord Hmm. Cornwallis. Okay, okay. Any Carnavalis suggestion? Any suggestion from Carnavalis? Sir, I'm not able to recall it right now, sir. Okay, okay. Yes, Raju. Uh, yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Yes, Uh, Sir, can I start? yes.
Sir, Indian police is established to serve the British power. It established through the Act, Indian Police Act 1861, sir. And with the time, it's a reform to serve the colonial government, sir. Like the reform taken by the Lord Cornwallis and William Bentinck, sir, in order to benefit the British company, sir. And with the after independence, it's still continue, and it's the structure, the way of functioning and training is still that colonial government that created, sir. And this created a negative public perception and mistrust among the Indian citizens. And they also uses third degree torture in order to investigate any crimes, criminals, those who are in the jail, sir, in order to get any information. And at the present, Indian police are overburdened. As Manish also said that we have lacking roughly around 70 police per lakh as per UN. That increase the burden on the police existing police officer. Like they are working more than even 16 hours, and 24% police officers working for more than 16 hours, sir. And this created a problem in their working efficiency and mental health problems, sir. And this further lead to the excessive burden on the existing infrastructures, like they having lack of forensic lab, like modern weaponaries, in order to tackle the 21st century problem. Like we are evolving in cyber crimes. We having even crimes on the online dark web, emerging of dark web, sir. But at the present, they are not trained enough in order to tackle that problem, sir. So we need to bring a police reform in order to tackle that reform, sir. Like we have also taken the reform like a smart policing, so that we integrate the modern technology like AI in order to enforce predictive policing and handle the modern challenges like cyber crime, stack bullying in the country, sir. And apart from that, various committees, various judgments are also given in order to modernize police. The judgment Okay, like okay. Prakash Singh case. Okay, you said third degree torture. Is there anything Yes, sir. second degree or first degree torture? Uh, Sir, I am not aware of first and second degree, but in third degree we use force Okay, in order to take Manish? information. Sir, I am also not aware about this term, but I can guess that uh, in first or second degree there is a mild use of force or only verbal communication can be taken. But in third degree, one Okay, go for harsh. actually, universally no recognize second degree and first degree. It is like na ki third degree is generally recognized terminology. But in first degree, what happens na ki we are talking to the person. Let us take ki I'm a professional police person. So I will talk to the person ki yes, if you have committed crime. See, crime, commission of crime can happen either ki cold blooded, ki I planned everything, or it can happen in fit of rage, ki something randomly happened. Let us take na ki I am a cool minded person, I'm going somewhere, some person is smoking, let us take in public place. I have no plan to fight with that person. A person is smoking. I said something कि it is wrong to smoke in public place. उसने बोला तेरे बाप का जगह थोड़े है. अब let us take कि in that order I did something. So that was not intentional. So उसमें से क्या होता ना कि आप फर्स्ट डिग्री में है कि the person is, let us take कि either he or she is given opportunity कि whatever happen you should say. देखो कहीं भी जो आपका लॉ में क्या देखा जाता है, इंटेंशन देखा जाता है, सर्कमस्टांसेस देखा जाता है. तो इंटेंशन आपका सही है था, सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में है, तो पनिशमेंट कब. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपना जो सिचुएशन है उसको बता देता है, लेकिन अब उसमें से नहीं मानता. तो सेकेंड डिग्री एक तरह से क्या है कि आप उसको डराओगे,
या हल्के फल्के जो फोर्स यूज करोगे, या फिर जैसे लेटेस्ट टेक ना एक प्रिजनर्स डायलेमा वगैरह जैसे होता है ना, कि उसको ये करोगे कि तुम दो सपोज पर्सन है, तो उसको बोला अच्छा तुम ये नहीं करोगे तो तुमको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा, तुम्हारा वो छूट जाएगा, सपोज मोर देन टू पीपल आर इन्वॉल्व ऑन आउट, तो एक तरह से कोअर्सिव मेथड ही है। पर थर्ड डिग्री है कि जो बहुत ज्यादा फोर्स यूज करना, जैसे आपने देखा कि लेटेस्ट टेक तमिलनाडु का केस हाल के दिनों में ये था कि एक चोरी के केस में किसी को आप मारते मारते उसको जान मार दे रहे हो। तो देखो नॉर्मल चोरी का केस यदि है तो सपोज करो कि वो एक्सेप्ट कर लेता या जो भी कुछ चीजें हैं, तो उसको पनिशमेंट तो लिमिटेड फ्यू इयर्स के लिए होगा। बट आप उस चीज के लिए किसी लेटेस्ट टेक की एक गोल्ड का ज्वेलरी किसी ने चुरा लिया, तो डेट इज रॉन्ग थिंग ना, यू आर killing that person. Okay, so this thing is okay. Yes, continue. Anything more, Raju? Yes, sir. And I cite one code the data. As per Indian police report, it is 30% those who are in jail face the torture, and in order to give information, sir. This led to the they denied in the judicial system that they not done Okay, in just tell me 4 points. What are problem of present policing system? Just point sir. 4 points. Yes, sir. They are not ready for 21st century problems. Like we having There, this is the 0.03%. problem. This is not a specific problem. Ki they are not ready for 21st century. We are in 21st century, so this is problem. You cannot add in one problem. Okay. Okay, sir. Sir, they not involving the community in order to get information or in order to do Ready policing, here. sir. Start from basic now. Ki they are not getting adequate training as per present requirement. That point you can say. Obviously, you Yes, sir. said they are not ready. So in ready, तो all component, but training is not there. Let us take ना simple एक example बताता हूँ. You are assistant commandant, means you will be assistant commandant. Then you are getting training of 52 weeks. 52 weeks basic training. After that, commando training. After that, other trainings. So you are getting a specialized training. You are having better facility and all. Let us take go to a state police. A constable is getting 6 month training. सो आपको 1 साल और प्लस और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको 6 मंथ का दिया जा रहा है। तो एक तो वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि कौन, वो फिजिकली स्ट्रांग है, देखो फिजिकली वो ज्यादा एक्टिव है, लेकिन ट्रेनिंग कम मिल रहा है, तो एक तो लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। हाँ। Yes, sir. Sir, a mistrust among the citizens, sir, and lack of infrastructure in terms of weapons, forensic lab. There is no segregation of inquiry and policing, sir. They are same thing इन्वेस्टिगेशन are done एंड by the पुलिसिंग। investigation policing. Yes, sir. They are done by the same police officer, sir. That leads to conflict of interest. ओके, यस लवदीप। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। सो इलाबोरेट प्रॉब्लम a little more. Sir, political interference is very high among police personnel, sir. According to a report of 2022, sir, more than 72% of police officers or police personnel had been pressurized by the political leaders, sir. And second, sir, implementation of Supreme. Not even a single state have completely implemented the Supreme Court judgment of 2006 of Prakash Singh case, sir. And sir, there should be a model police code which replaces the 1861 Act of Police and the police while aligning with the human rights and ethics, sir. And sir, corruption is a major problem, sir, in police system in India, sir. You know Prakash Singh? Yes, sir. He was the DGP of Punjab Police, sir. DGP of Punjab Police. Yes, sir. I think he was the DGP, sir. He was DGP of UP. And he was DGP of BSF.
Punjab DGP was Okay. KPS Gill. Yes, sir. So what you know about Prakash Singh other than DGP? So in DGP you are not knowing. Sir, I have not read about sir DGP Prakash Singh, sir. No, leave aside DGP. He was not DGP of Punjab. But other than that, some people before you, they talk about Prakash Singh. Manish took name of Prakash Singh also. So Yes, sir. who is Prakash Singh? Why Prakash Singh? Prakash Singh's name is famous. Because sir, he initiated by filing case in Supreme Court, sir. I have not read about him, sir, more. Okay. देखो डियर, पुलिस रिफॉर्म को में जब तक प्रकाश सिंह को नहीं मेंशन करते हो तो वो अधूरा माना जाएगा, ठीक है ना। इनफैक्ट देखो, जो इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है, तो एक मेजर माइलस्टोन था जो नेशनल पुलिस कमीशन जो बना धर्मवीरा के गाइडेंस में, तो वो एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। इनफैक्ट देखा जाए, एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस पाकिस्तान ने लागू कर दिया, ठीक है ना, कि पाकिस्तान ने को के पास शायद रिसोर्सेस या जो भी है उतने काबिल पर्सन नहीं थे कि पुलिसिंग सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो देखो, कोई भी कमिटी है और किसी का रिकमेंडेशंस तो पब्लिक डोमेन में जब आ जाता है तो उसको तो कोई भी देख सकता है। तो कहा जाता है ना कि हमसे ज्यादा उसका रिकमेंडेशन जो है पाकिस्तान ने लागू कर दिया, ठीक है। तो देखो, सबसे जो जरूरी है, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ जो इंडिया में पुलिसिंग का सिस्टम देखते हो, तो तीन चार जो प्रॉब्लम सबसे हैं। एक तो वैकेंसी, ठीक है ना। वैकेंसी को हर हाल में बोलना है कि देखो, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ कम है, जैसे यू सेड ना मनीष की 222 रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 155 अभी जो लास्ट लेटेस्ट जो है वो 155 अप्रॉक्स है। अब देखो 155 है तो एक तरह से देखा जाए 67 तो हम ऑलरेडी लैग कर रहे हैं कि पर 1 लाख पॉपुलेशन 67 ऑलरेडी कम है। अब उसके बावजूद भी वैकेंसी भी तो है ना। अभी देखा जाए तो लेटेस्ट जो देखो तो ऑलमोस्ट 20% वैकेंसी है। तो एक तो आपका कम है, उसके बाद 20% वैकेंसी, तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा देखो, इसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है, वीआईपी वाले जो सिक्योरिटी भी वीआईपी और वीआईपी सिक्योरिटी, एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल, ठीक है। मतलब ये सब चीज ऑब्वियसली है कि एक अंडरस्टैंडिंग के एंगल से आप इंटरव्यू बोर्ड पे तो उतना ज्यादा वही सबका इम्प्लीकेशन। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक समय मैं जो आज प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम जो है, वो कभी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम हुआ करता था। तो आई वॉज रेगुलर विजिटर ऑफ दैट प्लेस, ठीक है ना। तो मैं देखता था कि कुछ मिनिस्टर, उसमें से एक जयराम रमेश जो कांग्रेस में मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उस समय वो इनिशियल टाइम में ऑब्वियसली वो मिनिस्टर थे जब मैं जाया करता था, फिर बाद में मिनिस्टर ना रहे। आई सॉ हिम कि विदाउट एनी बॉडीगार्ड ही वाज कैबिनेट मिनिस्टर, विदाउट एनी बॉडीगार्ड ही यूज्ड टू कम एंड सम मोर पीपल ऑब्वियसली। नाउ सी सिंस ही इज, you can criticize that person, that is a separate thing, but take any person from, let us take notorious states like ना कि यूपी बिहार हरियाणा एटसेट्रा ना, कि दे अंडरस्टैंड ना कि द मोर बॉडीगार्ड यू आर हैविंग, द मोर पावरफुल यू आर देयर। इनफैक्ट चिदम्बरम, आई वॉज लकी इनफ की टू सी हिम। तो चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे तो ही वॉज डिजर्विंग जेड प्लस सिक्योरिटी, he was using just by security minimum number। so अब देखो, आप यहाँ के बहुत सारे जो लोग पॉलिटिशियंस हैं वो डिजर्व उतने नहीं करते हैं जितने की वो रखते हैं। तो हमारे एक तो कम है तो वो उसमें यूज होता है। एक जैसे केस आपने देखा पप्पू यादव, पप्पू यादव फॉल्सली सेड ना कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप वाला जो है वो हमको धमकी दे रहा है, और एक्चुअली जब कॉल ट्रेस किया गया तो बोला कि अपने ही किसी गुंडे से कॉल करवाया कि यस तुमको धमकी, तो जस्ट टू स्टेट सिंबल कि हमें एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड मिल जाए। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना।
तो एक तो कम है आपके पास, दूसरा आप एक्स्ट्रा ड्यूटी में लगाए हुए हो, वैकेंसी आपके पास है, प्लस हमारे यहाँ सबसे जो प्रॉब्लम है कि जो कोर और नन कोर टास्क को डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है ना, जो पुलिसिंग का कोर और नन कोर, जैसे अभी आपने हाल में सुना होगा एक दो दिन पहले न्यूज, और ये लंबे समय से डिस्कशन चल रहा, सीआईएसएफ में कुछ जो एयरपोर्ट के बहुत सारे काम जो हैं वो सीआईएसएफ वहां से हटाए जाएंगे, क्योंकि नन कोर टास्क जो है बहुत सारे आप दूसरे को दोगे। तो वैसे ही स्टेट में कहीं भी देखो देखो पुलिसिंग जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो हमारे यहाँ कोर और नन कोर डिवाइड नहीं है। तो यदि कोर जो होना चाहिए वो क्या है कि जो ट्रेंड प्रोफेशनल हैं वो कोर टास्क को करें। देखो पुलिसिंग में सबसे बड़ा जो चैलेंज है इन्वेस्टिगेशन का चैलेंज है। जस्ट इमेजिन करो ना कि कहीं ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, कि नेताजी जा रहे हैं, तो वो ट्रैफिक के लिए बहुत ज्यादा आपको टैलेंट होने की जरूरत नहीं है। आई नो सम ऑफ पीपल ना कि कभी जा रहे हो रोड में जाम है, और ये तो कुछ ऐसे पब्लिक आपको मिलेंगे वो जाम में ये जा करके इधर उधर करके हटाने की कोशिश करेंगे, बोलते हैं कि हमारी आदत हो गई है तो मैं वो कर लेता हूँ। तो सोचो उसके लिए तो बहुत ज्यादा आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें हैं, तो कोर और नॉन कोर को डिवीजन करना। अब देखो सेम ही लेटेस्ट टेक ना कि एक केस है, कोई भी एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा विद टीम, अब उसको बोला गया कि मंत्री जी आपके एरिया में आ रहे हैं, तो 6 दिन पहले से आप वहां उनके अरेंजमेंट में करो, तो वो आपके पास एक प्रॉब्लम होता है। फिर अनड्यू प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिशियंस, और ये सारी चीजें हैं जिसका कि हर कमिटी ने इस चीज को भी जिक्र किया है। दूसरा एक है कि देखो जब आपके पास कम पीपल हैं तो वर्किंग आवर बहुत ज्यादा हो जाता है। जो फाइंडिंग पाया गया है उसमें से ये माना गया कि 20% पुलिस पर्सनल ऐसे हैं, 20% अप्रॉक्स, जो कम से इनफैक्ट 20% से ज्यादा ही कर सकते हो, जो 16 आवर्स या उससे ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। तो 16 आवर्स कोई ड्यूटी कर रहा है तो दैट इज पैथेटिक। फिर उसके बाद लीव का कुछ पता नहीं है, रेसिडेंस का एक प्रॉब्लम भी है, रेसिडेंस वगैरह भी नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें। फिर दूसरा टेन्योर वगैरह का। अब जैसे देखो कोई एक लेटेस्ट एक एसएचओ है, एसएचओ एक पॉइंट वैसा है जो डायरेक्ट केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। सामान्य रूप में सामान्य केस को देखो डिप्टी एसपी और एसपी हर केस को नहीं वो करते हैं ना, वो कोई हाई प्रोफाइल केस रहता है तभी, जैसे है कि लेटेस्ट एक एनआईए या उस टाइप के कुछ से आ जाते हैं तो डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी कम से कम ये करेगा, या कुछ बड़े केस जैसे होते आते हैं तो उसमें कोई एसपी या डीआईजी लेवल का अधिकारी। तो एसएचओ एक ग्राउंड लेवल का अधिकारी है। अब उसको आप ओवरबर्डन किए हुए हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्लस दूसरा ये है कि उसको तुरंत ट्रांसफर कर दिए। अब मान के चलो ना कि एक वो डायरी लिख रहा था, अब केस अभी आधा काम हुआ, अब इसको ट्रांसफर आपने दूसरे जगह कर दिया, तो वो काम तो पेंडिंग रह गया, फिर नया आएगा, उसको समझेगा, कोऑर्डिनेशन की कमी है, बहुत सारी चीजें हैं। चलो कौस्तुभ, तुम्हारा अभी टर्न बाकी है। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। प्रकाश सिंह केस सुना? Yes, sir. Yes, sir. Prakash Singh case, I know. I think 2 points everybody missed, sir. I want to add. One was the sensitization for women, sir. Sir, in police forces, women are increasing, but infrastructure gap that is there for their facilities is also Justice there. J.S. Burma highlighted this specifically, and also कि in Malimat committee Justice also Thomas Committee also. highlighted Yes, this. sir. Okay, yes. Yes, sir. And second is, sir, more focus is on prime, like police are seen as public perception is that police are seen more as trouble creators than troubleshooters, sir. So this is one of police mobility, like the vehicle, and these are some issues that I see. Most is the sensitization and other issues everybody has highlighted only. I don't have much to add in it. Anything more? Sir, these are only thing. I think police should focus more on prevention of crime than just going after when crime has happened. Secondly, the non-core things that you have said, they should not be digressed. Third is, sir, the center and the एक state, और चीज है ना, the tussle between center and state. कम्युनिटी पुलिसिंग, इस पर भी जैसे Yes, कुछ sir. स्टेट्स ने उस चीज को किया है। Sir, example, Kerala Yes. has Jan Maitri beat officers
Yes. where they do community policing. That Yes. is a replicable And model. इनफैक्ट ना देखो, थर्ड टियर गवर्नमेंट जो हमारा है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसमें भी देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देखो कुछ जगह जो है, हर जगह के अलग अलग थोड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिहार को लेता हूं, जैसे यूपी में जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं उसको प्रधान बोलते हो, ठीक है ना। या Yes, sir. फिर लेट अस टेक कि जम्मू कश्मीर है या हरियाणा है, तो उसमें सरपंच जो होते हैं, या लवदीप सरपंच है ना तुम्हारे यहाँ हेड? यस सर। यस। तो बिहार में जैसे फॉर एग्जांपल लो तो दो पोस्ट हैं, एक मुखिया है और एक सरपंच है। तो मुखिया विल लुक आफ्टर डेवलपमेंट वर्क और सरपंच विल लुक आफ्टर दिस लॉ एंड ऑर्डर। की छोटे मोटे, आप जस्ट इमेजिन करो ना कि किसी ने मेरे खेत से गन्ना उखाड़ लिया, तो अब उसके लिए मैं थाना जाऊं, ये तो ठीक नहीं है ना। जैसे अब आजम खां की Yes, sir. भैंस चोरी हो गई तो पूरा पुलिस लगा हुआ है। एक बार जैसे Yes, sir. लेटेस्ट टेक ना कि बिहार में किसी मिनिस्टर के यहाँ से 6 केले काट लिए किसी ने, 6, केले के पेड़ में केले थे, अब किसी ने 6 काट लिया, तो 3 डीएसपी 1 सप्ताह तक उसको इन्वेस्टिगेट करते रहे। ठीक है मतलब देखो, दिस इज ट्रू। वन ऑफ बिहार के Yes, the filing of FIR is also an issue, sir. हाँ, बिहार का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किंग महेंद्र था, राज्यसभा का, दिल्ली में उसका कटहल किसी ने चुरा लिया, दिल्ली में जो एमपी हाउस था। अब उसके लिए काफी मीडिया में ये रहा। तो छोटे छोटे पेटी इशू है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें एक डीएसपी लेवल के अधिकारी को या 2 डीएसपी लेवल के अधिकारी को लगाते हो, तो अननेसेसरी जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे एक और एग्जांपल, जो लेट अस टेक ना कि अभी हमने बोला कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं तो बिहार या उस टाइप के स्टेट में थोड़े से बहुत ज्यादा नंबर में जरूरत के से ज्यादा रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीतीश कुमार, तो अब तो ऑब्वियसली वो हटने वाले हैं। तो इधर देखो हाल के दिनों में क्या हो गया है कि उनकी ऐसी स्थिति है कि वो पब्लिक से इंटरेक्शन उस लेवल से करते नहीं है जो भी है। गोन आर द डेज कि जब मैं कभी उनसे ऐसा सिचुएशन रहता था कि तुम हो और आराम से उनसे मिल सकते हो, सारी चीजें बातें बातें भी कर सकते हो, एक वो वक्त था। इधर हाल में क्या हुआ कि पब्लिक को उनसे दूर रखा जाता है, जहां भी गए बैरिकेटिंग करके रखा जाता है। तो वो जब यात्रा कर रहे हैं, 600 मजिस्ट्रेट को लगाया गया। अब उस 600 मजिस्ट्रेट में समझ सकते हो कि सारे ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर नहीं होंगे, कुछ जो होते हैं जैसे लेटेस्ट एक वीडियो है, सीओ है या डिप्टी कलेक्टर है, उस लेवल के सारे लोग को। अब सोचो कि 600 ऑफिसर को आप लगाए हुए हो उसकी सुरक्षा में, तो अदर चीजों के लिए क्या होगा। प्लस जैसे अब फॉर एग्जाम्पल लो, बिहार की पुलिसिंग की आज के डेट में आधा जो ड्यूटी है वो अल्कोहल में है, ठीक है। तो उसको Yes. 2 चीजें करना है, एक तो कुछ अल्कोहल को आने देना है। Clarity of laws is also required, sir. यस। तो बहुत सारी चीजों को जो कोर और नॉन कोर में है कि ये अननेसेसरी चीजों को किया। तो एक दो जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उस पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग यदि होगी तो पीपल बहुत सारे छोटे छोटे इशू को आप आपस में ही एक दूसरे से बात करके, या जो सिस्टम है लोकल लेवल पे उसको, उससे आप वर्क कर सकते हो। देखो जैसे जब भी ये है तो प्रकाश सिंह केस को एटलीस्ट जो 7 पॉइंट्स हैं उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ही इज द पर्सन ना कि एवरीवेयर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू पंजाब टू बीएसएफ टू यूपी, ही वर्क सो मच। और ही इज यूनिक पर्सन इन द सेंस कि ही वाज आल्सो डीजीपी ऑफ DGP of BSF, BSF. and his son also was DG of BSF. Okay, his son Pankaj Singh, sometime he was Deputy National Security Advisor, then he retired as DG BSF. एक्चुअली प्रकाश सिंह अभी भी देखोगे 90+ ईयर्स, सोचो जिसका बेटा रिटायर Yes, हो sir. चुका है डीजी से, तो उनका एज तो काफी ये होगा ना। एंड स्टिल ही इज एक्टिव। बहुत सारे कभी ना जब भी मौका मिले तो उनके किसी वीडियो को देखना, मतलब कोई भी उनका एटलीस्ट होगा, बहुत सारे उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। तो किसी एक को जिसका भी आपको लगेगा घंटा 1.5 घंटे का, आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो, लेकिन इट विल गिव यू सो मच इनसाइट। देखो जैसे जो हमारा पुलिसिंग सिस्टम है और ये, तो इसमें सबके लिए जरूरी है कि हर कोई स्टेक होल्डर जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करें। देखो अभी जो हमारा आईपीसी सीआरपीसी वगैरह को जो
भारतीय न्याय संहिता और ये सब नेम चेंज करने का एक मकसद ये भी है कि जो पुलिसिंग है, देखो पुलिसिंग जो 1861 का क्यों कोडिफाइड सारे किए गए, कि उस समय टारगेट क्या था कि इंडियन को दबा करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है। तो अब वही मेंटेलिटी चलता आ रहा है आज भी। जैसे देखो किसी भी पर्सन का, लेट अस टेक कि आप में से जब एक बार आप बन जाओगे तो फिर नॉर्मल लगेगा, हाँ चलो ये हमारा पार्ट एंड पार्सल है कि कहीं ना कहीं आपको पुलिस ऑफिसर से रेगुलर रूप से इंटरेक्शन करना। लेकिन साधारण आदमी जो है वो थाने जाने से डरता है। बहुत बार जेन्यून तरीके केस भी होता है तो आदमी एवॉइड करने की कोशिश करता है, बिकॉज एक तो जो सिस्टम बन गया है, आपका जेन्यून भी वर्क है ना, तो बिना पैसे का नहीं करेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, आप लोग जब बन जाओगे असिस्टेंट कमांडेंट तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अब देखो पुलिस वेरिफिकेशन यदि हो रहा है तो वो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, आपने सारा प्रोसेस किया, आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके वहां जाओगे, बट स्टिल यू हैव टू गिव समथिंग। ऑब्वियसली वो ऐसे डायरेक्ट नहीं मांगेगा कि हम आपसे ये के लिए, बोलेगा कि खुशी की बात है मिठाई खिलवाओ। अब आपने मान के चलो कि मिठाई खाने के लिए 1,000 दिया, एक सिंपल एग्जाम्पल, तो बोलेगा 1,000 में कौन सा मिठाई आता है, इसका मतलब है कि वो महंगा वाला खाएगा, ठीक है ना। तो आपको 2 से 2,500 रुपया देना पड़ेगा। तो दैट्स द थिंग कि कहीं ना कहीं अब जस्ट इमेजिन करो कि एक पर्सन सिस्टम में इंटर हो रहा है, तो ठीक है, एक आदमी उसको नहीं सोचता है वो दूसरी चीज है, लेकिन अदरवाइज दिस इज रॉन्ग ना, स्टार्ट वहीं से हो जाता है। दूसरा, एक जो पॉलिटिकल क्लास जो है वो काफी चीजों को मिसयूज करते हैं, प्लस जो पब्लिक में अवेयरनेस की कमी के कारण कि हम साधारण लोग जो होते हैं ये कानून को जानते भी नहीं हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास लिटरेसी रेट कम है या फिर लोग अवेयरनेस कम है, प्लस लोग सपोर्ट नहीं करने के लिए तैयार रहते हैं ना कोई भी। जैसे लेटेस्ट टेक की कोई कानून जान रहा है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल यही प्रकाश सिंह वाला, कभी उनको सुनोगे तो बोले कि देखो मैं एक डीजी रह चुका हूं, मैं एक रिनाउंड पर्सन हूं, उसके बाद भी लोग कैसे करते। बोलते देखो जब मैंने केस फाइल किया तो 96 में के आसपास किया, तो 10 इयर्स लगा उसको जजमेंट मिलने में। तो बोले कि मैं और उनका केस जो लड़ रहे थे प्रशांत भूषण, ठीक है ना, तो प्रशांत भूषण बोला कि उन्होंने फी नहीं लिया, तो हमारा काम एक तरह से हो गया। तो बोले कि मैं होता था, प्रशांत भूषण होते थे हमारे तरफ से, और एक या दो कोई और जो हैं जो मोरली सपोर्ट करने के लिए। तो बोले हम 3 से 4 लोग कोर्ट में हैं, और सिंस पुलिसिंग इज स्टेट सब्जेक्ट, तो बोला सब स्टेट के एक एक लॉयर। तो बोला कि एक साथ 25 लॉयर 30 लॉयर है। और अब चूंकि उनके पास, बोले कि देखो मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं था कि हम एक्स्ट्रा टीम को रख सकते, वो तो प्रशांत भूषण जो थे बिना पैसे के काम करते थे, तो वो रहते थे। तो बोले मेरे पास एक वकील या एक दो और जस्ट सपोर्ट में, मोरल सपोर्ट में, और उनके पास 25 से 30 हुए। अब वो 25 से 30 यदि अपना डिबेट कर रहे हैं, और ये तो लगता था ना कि मैं बेचारा हूं कोर्ट में, ही सेड दिस थिंग ऑन हिज ऑन। सोचो जो एक वो पर्सन जिसका, फॉर्चुनेटली ही सेड ना कि ऑल माय रिकमेंडेशंस वेयर एक्सेप्टेड, 7 जो रिकमेंडेशंस वो हैं तो वो 6 स्टेट के लिए और 1 जो है यूनियन के लिए। तो बोले कि सोचो जब उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो समझ सकते हो एक साधारण आदमी जो लॉ और ये सब नहीं जानता है। तो छोटे छोटे चीजें होती है। देखो इन चीजों को डिस्कशन करने का मतलब होता है कि एटलीस्ट आप उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में थोड़ा सा जानो। बहुत बार जैसे होता ना कि स्मॉल स्मॉल थिंग्स को जब आप एनालिसिस करते हो, स्मॉल स्मॉल थिंग्स को जब आप पढ़ते हो, एक बार बोलते हो, एक बार सुनते हो, या एटलीस्ट उसके बारे में फिर अगेन रिसर्च करते हो, तो देखो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। यदि हम पूरी पुलिस रिफॉर्म्स को देखें तो एक तरह से जब स्मॉल स्मॉल फॉन्ट में लिखोगे तो 1 से 2 पेज, 2 पेज मैक्सिमम है, उस 2 पेज में हमारा मेन जो की पॉइंट्स आ जाएंगे। मेजोरिटी के देखोगे सजेशंस जो होते हैं मोर और लेस सेम होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आप करते रहते हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो तब भी था जब देश आजाद हुआ था, और प्रॉब्लम आज, यस आज है नए नए जो, जैसे साइबर क्राइम हैं,
तो उसमें टेक्निकलिटी बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें हैं। लेटेस्ट टेक ना कि टेक्निकल में अब जब तक ट्रेंड नहीं हो, कोई पर्सन यहाँ है और वो किसी सर्वर दूसरे कंट्री का यूज कर रहा है या आईपी एड्रेस इस ढंग का यूज कर रहा है कि ट्रेसिंग में डिफिकल्ट, तो ठीक है, जो एक्सपर्ट हैं वो तो शायद पकड़ लेंगे, लेकिन एक कांस्टेबल जो है या एक एसएचओ है या एक डिप्टी एसपी है, वो सबको तो उस सारी चीजों के बारे में पता नहीं है। तो टेक्निकलिटी धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। प्लस जो ये सेंसिटिविटी, जैसे अभी जो क्या है स्मार्ट पुलिसिंग जो है ना, स्मार्ट पुलिसिंग ये आपका जरूरी होना चाहिए। तो आप स्ट्रिक्ट रहो लेकिन सेंसिटिव भी तो आपको होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ट्रेंड हो तो टेक से भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। हम ये नहीं सोच रहे ना कि, तो देखो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये है कि सिस्टम को भी थोड़े से कि जब हम नंबर ऑफ पीपल हैं एक थाने में, आप 50, किसी जगह 50 है, किसी जगह 30 है। अब 30 है और उसमें भी 10 को बुता दिए कि चलो ये यहाँ धरना प्रदर्शन जहां भी होता है, तो धरना प्रदर्शन जब भी होता है तो देखना कभी कि बोला 5 आपके थाने से आएंगे, 6 इसके थाने से आएंगे, वो करके कलेक्ट करके 200 लोगों को जमा किए। तो वैसे में एक तो रिसोर्स कम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। ठीक है, एटलीस्ट हम बेसिक्स चीजों को थोड़े बहुत जाने। किसी को और कुछ इनपुट डालना है तो बता सकते हो। सर एक कैरियर जो स्टेगनेशन है पुलिस में, वो ही मतलब कि एक बहुत बड़ा वो रोल प्ले करता है, मोरल डाउन करता है उसका वर्किंग एफिशिएंसी। तो इंडिया का जो, जिस देश ने इंडिया पुलिसिंग सिस्टम लाया, उसका पुलिसिंग सिस्टम इंडिया से कहीं अच्छा है, क्योंकि उसमें सारे जो वैकेंसी है वो नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक प्रमोशन के थ्रू जाता है। लेकिन इंडिया का जो पुलिसिंग सिस्टम है उसे मतलब कि डिफरेंट पोस्ट के लिए इन द सेंस की अलग अलग वैकेंसी निकलता है। तो इस कारण से भी एक फ्यूडेटरी सिस्टम आ जाता है कि हम ऊपर में हैं तो तुम मेरे नीचे ही रहोगे, इस तरह से। और फिर करियर स्टेगनेशन भी होता है। तो स्ट्रक्चरल इशू है इंडिया का जो पुलिसिंग सिस्टम है, उसमें स्ट्रक्चरल इशू बहुत एक बड़ा रोल फैक्टर प्ले करता है, इस सब सारी चीजों को देखे तो। देखो अभी जैसे सिस्टम यही है ना कि एक कांस्टेबल से यदि कोई अपॉइंट हुआ तो हो सकता है हेड कांस्टेबल से रिटायर हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मोटिवेशन बहुत कम है कि ठीक है हमको तो इसी कंडीशन में रहना है। मतलब एक्सेप्शनल है ना कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर बन गए, फिर उसके बाद कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं कि ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन ऑफिसर तभी बनते हैं ना जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया, या कभी कभी सुनते हो ना कि कांस्टेबल है और वो डिप्टी एसपी बन गया, या उस टाइप के, तो वो एक्सेप्शनल। लेकिन जो जैसे अभी क्या है हमारे पास 86% जो है कांस्टेबल लेवल के हैं। अब 86% कांस्टेबल लेवल के हो तो आपको पता है कि हमारा, या तो कुछ ऐसे हैं जो कांस्टेबल ज्वाइन हुए और कांस्टेबल ही रिटायर हो गए, या मैक्सिमम क्या है कांस्टेबल ज्वाइन किए तो हेड कांस्टेबल के रूप में रिटायर हो गए, या किसी को पता चला कि 2 महीना जॉब है तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सपोज करो कि बन गए। तो एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। एक आईपीएस है, वो जानता है कि हम राजा पैदा हुए हैं और राजा ही रिटायर, मतलब ज्वाइन भी राजा के तरह हुए हैं और रिटायर भी राजा की तरह होंगे। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। चलो ठीक है, अब जो कल नई सेशन होगा 2-3 दिन बाद अब फिर होगा, ठीक है ना। और इधर 8 डेज से कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। फर्स्ट टाइम एक तरह से कंटिन्यू हमने 8 डेज किया, फिर 2-3 दिन रुक करके फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। कुछ और ये करके जो भी है, और जो भी बीच में ऑब्वियसली है इशू होंगे तो मैसेज आप जब भी है करो, ठीक है। थैंक यू।